Okay, guys. So this is Kajal ma'am from NK Law classes, jurisprudence. Now this is fourth part in which we are going to discuss about the person. This subject is there in your LLB SEM 4 and BLS SEM 8 of Mumbai University. So we'll see the concept of person as given under jurisprudence. So see, actually person में ना, ah, I think so there is some mismatch of the slide. So okay, there is some little mismatch of the person. एक slide मेरा missing हो गया है. There are two types of person. One is legal person, one is natural person. What do you mean by natural person? मतलब human beings only. What you and me are there. We people are person. We call ourselves as person. लॉ एक कदम आगे चलता है, वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग को ही पर्सन नहीं काउंट करता है. लॉ हैज डेवलप्ड अ न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज लीगल पर्सन. तो जो लोग ह्यूमन बीइंग नहीं है, इवन दे आर considered as person. Yes. Hello. Yeah. Hello. Am I audible? Hello. Am I audible? Yes. Okay. तो लॉ एक कदम आगे है. लॉ बोलता है कि जो लोग नहीं है ह्यूमन बीइंग, दे आल्सो कैन बी द पर्सन. पर्सन होने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? तो ओनली रिक्वायरमेंट इज दैट द पर्सन शुड बी केपेबल ऑफ सर्टन राइट्स एंड सर्टन ड्यूटीज. मतलब जिसके अंदर आप ड्यूटीज इम्पोज कर सकते हो, जिसके अंदर आप राइट्स दे सकते हो, उसको आप पर्सन बुला सकते हो. तो पूरा लीगल पर्सन का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है. So there are three broad categories of the legal person. First is corporation, जो आप लोग ने already last semester में Companies Act में पढ़ लिया है. Second is institution and third is fund. So first we'll see what comes under corporation. Typically corporation का मतलब क्या होता है? Group of individuals who constitute the corpus of the body. Typically group of individuals जमा होके corporation बनाते हैं. It has fictitious personality which is distinct and separate from its members. मतलब कॉर्पोरेशन के जो मेंबर्स रहेंगे, दे आर डिफरेंट, दे आर सेपरेट फ्रॉम द कॉर्पोरेशन इटसेल्फ. चार लोग ने मिलके एक कॉर्पोरेशन बनाया. नाउ दीस फोर पीपल आर डिफरेंट, कॉर्पोरेशन इज डिफरेंट. ओके, अभी कॉर्पोरेशन की भी टाइप्स है. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेशन. फर्स्ट इज कॉर्पोरेशन सोल, सेकंड इज कॉर्पोरेशन एग्रीगेट. कॉर्पोरेशन सोल का मतलब क्या है? देयर वुड बी ओनली वन पर्सन. कॉर्पोरेशन एग्रीगेट मतलब देयर विल बी मेनी पीपल. Hello. यस. Hello. Yes. Hello. Yeah. Hello. Am I audible? Hello. Yeah. Hello. Yes. मैम अच्छा एक सेकंड. Okay. So types of corporation, there are two types of corporation: corporation sole, corporation aggregate. corporation sole मतलब एक ही बंदा होता है. corporation aggregate मतलब बहुत सारे शब्द होते हैं. corporation sole में क्या होता है ना? It is typically a public office which may be created by the act of parliament और ecclesiastical office, that is church का office जो है वो. अभी एग्जाम्पल मैं आप लोग को दूंगी तो समझेगा. कोई भी सोवरेन पावर होता है. फॉर एग्जाम्पल किंग. किंग एक ही जना होता है, बट किंग विल कॉन्स्टिट्यूट अ कॉर्पोरेशन. चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, पोस्ट मास्टर जनरल, दिस ऑल पीपल वुड कॉन्स्टिट्यूट अ कॉर्पोरेशन सोल. उसका मतलब क्या होता है पता है? प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर की जगह पे कोई भी बंदा रहेगा. ही मे कम, ही मे गो, ही मे डाई, ही मे रिजाइन, but the position of the prime minister, position of the chief minister will always remain there. It's the position which is important, not the person. Postmaster general, for example, हर साल या तो there is certain tenure and all, नए नए लोग आते जाते हैं. Chief Justice of India, Chief Justice of High Court, position will always remain there. Person may be appointed, may be removed, may die, may resign, whatever may happen to them. So this is the concept of corporation soul. Corporation aggregate मतलब क्या होता है? अपनी नॉर्मल कंपनीज होती है ना, वो सब डे इन डे आउट लाइफ में हम लोग जो कंपनीज के साथ डील करते हैं, रिलायंस, टाटा, विप्रो, इन्फोसिस एंड ऑल दैट. Even municipal corporation comes under this. Okay, because it's a corporation. Next, ये हो गया फर्स्ट अपना corporation. Second is institution. Institution is also person.
इंस्टीट्यूशन होता क्या है? इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड फॉर अ रिलीजियस, एजुकेशनल, प्रोफेशनल और सोशल पर्पस। अभी रिलीजियस पर्पस के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट होती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपनी होती है, यूनिवर्सिटीज एंड ऑल, प्रोफेशनल लाइक सीए इंस्टीट्यूट दैट वे, या तो कोई सोशल पर्पस के लिए भी कोई इंस्टीट्यूट ओपन हो सकता है जो सब सोशल एक्टिविटीज के काम करती है, चैरिटेबल एंड ऑल दैट। इंस्टीट्यूशन का हमेशा एक पर्पस होता है। इंस्टीट्यूशन में लोग आएंगे जाएंगे, पीपल में कम एंड गो, बट इंस्टीट्यूशन विल रिमेन दैट, इंस्टीट्यूशन इज परमानेंट। एक आधे बंदे हैं, जिस बंदे ने इंस्टीट्यूशन चालू किया था, जिसके नाम का था इंस्टीट्यूशन, उसके मर जाने से फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जमनालाल बजाज, JBIMS बहुत बड़ा MBA का स्कूल है मुंबई में, और जमनालाल बजाज तो जब हुए तब हुए, मतलब उनके फैमिली में से किसी ने उनके नाम से शुरू किया, वो है कि नहीं है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, इंस्टीट्यूशन विल रिमेन देयर। जैसे साउथ में मैंगलोर में TFI इंस्टीट्यूट है जो मोहनदास पाई वगैरह लोग ने शुरू किया है, और टुमारो इफ इवन दे आर नॉट देयर, द इंस्टीट्यूशन विल रिमेन देयर। ओके, सी इंस्टीट्यूट वगैरह तो पता ही है सबको। नाउ इंस्टीट्यूशन हैज रूल्स एंड कैन एनफोर्स रूल्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज वेल। अभी इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होती है, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन होती है, तो उसके खुद के उस फील्ड के रिगार्डिंग ही रूल्स रेगुलेशन होती है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होती है तो रिलीजियस डूज डोंट्स डिसाइड करती है, सोशल वगैरह तो सोशल डूज डोंट्स डिसाइड करती है। तो दीज रूल्स एंड रेगुलेशन जो ह्यूमन बिहेवियर को भी इम्पैक्ट करते हैं, आर नॉट एप्लीकेबल टू एवरीवन अनलेस एंड अनटिल यू आर पार्ट ऑफ दैट। एग्जांपल यूनिवर्सिटी, चर्च, हॉस्पिटल एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट फंड। टिपिकली फंड क्या होता है? इट्स अ पूल ऑफ मनी सेट असाइड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। फंड इज बेसिकली मनी इकट्ठा होता है, उसको हम लोग फंड बोलते हैं। नाउ दैट फंड हम लोग उसको क्यों बोलते हैं? बिकॉज दैट फंड हैज टू बी यूटिलाइज फॉर अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस ओनली। फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड, सबसे ज्यादा कॉमन तो आजकल म्यूचुअल फंड ही है। उसमें हम लोग सब SIP करते हैं या तो लमसम पैसा डालते हैं। वी पुट इन अ पर्टिकुलर स्कीम ऑफ द म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या करता है? वो पर्टिकुलर स्कीम में जितने भी पैसे उसके पास आते हैं, सब पैसा अलग अलग कंपनीज में, या तो शेयर्स में, या तो डिबेंचर्स, या तो डेट इंस्ट्रूमेंट में वो इन्वेस्ट करते हैं, एंड वी गेट डिविडेंड। म्यूचुअल फंड का वैल्यू बढ़ता है एंड ऑल दैट, तो वो अपने को बेनिफिट होता है। सिमिलरली वेंचर कैपिटल फंड होता है। तो वेंचर कैपिटल फंड के पास बहुत पैसा होता है जो इन्वेस्टर्स से कलेक्ट करते हैं। व्हाट डू दे डू? फिर जो भी अच्छी अच्छी कंपनीज आती है ना, और नए नए स्टार्टअप्स वगैरह, उसमें ये लोग चुन चुन के डालते हैं। सेम कॉन्सेप्ट इज देयर इन द प्राइवेट इक्विटी फंड। किसी भी कंपनी को प्राइवेटली फंडिंग चाहिए, नॉट द पब्लिक फंडिंग, प्राइवेट फंडिंग, तो ये प्राइवेट इक्विटी फंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉफ्ट बैंक है, उसने अच्छी अच्छी कंपनीज में करके रखा था, लाइक फ्लिपकार्ट में भी आई थिंक तो उसका था, ओला में, उबेर में, इसमें तो बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज में उसका था। अलीबाबा में भी सॉफ्ट बैंक ने, इट्स अ जापानीज कंपनी बाय द वे, अलीबाबा जो चाइना का है सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वहां का, उसमें भी सॉफ्ट बैंक ने इन्वेस्टमेंट करके रखा था। वो एक इन्वेस्टमेंट की वजह से सॉफ्ट बैंक को 7 to, जितना पैसा डाला था ना, उससे 7 to 8 टाइम्स रिटर्न मिले थे, और बहुत जबरदस्त फायदा हो गया था। तो ये वेंचर कैपिटल फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड का काम ही वही है, अच्छी अच्छी कंपनीज को ढूंढ के उसके शेयर में पैसा डालते हैं ये लोग। चैरिटेबल फंड होते हैं, तो चैरिटी के लिए फिर वहां का पैसा यूज होता है। मठ, टेम्पल वगैरह जो होते हैं, उनके भी अपने फंड होते हैं। ट्रस्ट एस्टेट, कोई बंदा ट्रस्ट बना के जाता है, हालांकि पॉलिटिशियंस के भी बहुत सारे ट्रस्ट होते हैं। कोई डिसीज बंदा, मतलब मरने से पहले विल बना के उसमें सब अपना प्रॉपर्टी लोग ट्रस्ट के अंदर छोड़ के जाते हैं, तो वैसे बहुत सारे ट्रस्ट एस्टेट भी होते हैं। तो ऑल दीज आर फंड्स, दे आर आल्सो पर्सन। So these were the persons. Now advantages of incorporation of a company. अगर हम लोग किसी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या होंगे? दिस आंसर यू पीपल हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में आपका ये हो चुका है पिछले सेमेस्टर में, बट वी विल जस्ट रिवाइज इट। सबसे पहले तो कंपनी इज व्हाट? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। मतलब कंपनी लीगल पर्सन तो है, बट इट्स नॉट नेचुरल पर्सन, तो इट्स आर्टिफिशियल पर्सन। इट डज नॉट हैव सिटीजनशिप, बट इट हैज रेसिडेंशियलशिप। कंपनी रेसिडेंट हो सकती है, इंडिया की है या किस किस कंट्री की है, दैट्स इट। तो जो भी पर्सन एज ए पर्सन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स मिलते हैं, बहुत सारे राइट्स वगैरह कंपनीज को भी मिलते हैं, बिकॉज इट हैज एग्जिस्टेंस इन द आईज ऑफ द लॉ। कंपनी डज एग्जिस्ट एज अ पर्सन। कंपनी कैन डू राइट, कंपनी कैन डू रॉन्ग, डू फ्रॉड, वो सब होता है। सेकेंड इज सेपरेट कॉर्पोरेट पर्सनालिटी और सेपरेट लीगल पर्सनालिटी।
ये आप लोग ने सीखा है कि कंपनी और जो लोग ने मिलके कंपनी को प्रमोट किया है, कंपनी को बनाया, दैट इज शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, मेंबर्स ऑफ द कंपनी आर टू सेपरेट एंटिटीज। कंपनी का कुछ भी काम है उससे शेयर होल्डर को कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग ने जियो का मोबाइल खरीदा या तो डेटा खरीदा, अभी जियो का आपको ये नहीं आ रहा है नेटवर्क वगैरह, तो यू कैन नॉट स्यू मुकेश अंबानी, यू हैव टू स्यू कंपनी जियो। सिमिलरली आपने ओला का सर्विस लिया, ड्राइवर मिसबिहेव्ड, आपको प्रॉपरली मजा नहीं आया, सिस्टम काम नहीं किया एंड ऑल दैट, यू कांट sue Bhavish Agarwal, who is the owner of Ola. You have to sue the company Ola. Understood? That is separate corporate personality. Perpetual succession, very important. Members may come and go, company always remain there. I've heard that way. I'm not 100% sure, but मैंने 2-3 जगह पे सुना है. In Japan, there are companies which are 1500 years old. 1500 साल से चली आ रही है. अपने इंडिया में भी बिरला वगैरह की, टाटा वगैरह की जो बहुत सारी कंपनीज है 100-150 साल पुरानी है. ईस्ट इंडिया कंपनी अभी तक एग्जिस्टेंस में है, 400 साल पहले इंडिया में आ चुकी थी. So company is a creation of legal process. So if company has to die, कंपनी का जन्म लीगल प्रोसेस से हुआ, तो कंपनी को मरना है तो भी लीगल प्रोसेस से ही होगा. कंपनी कैन नॉट डाई इट्स नेचुरल डेथ. तो इसमें एक हुआ था कि जब हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जो हाइड्रोजन बॉम्ब गिरे थे, तो इवेंचुअली द होल सिटीज वर एक्सटिंग्विश्ड, खत्म हो गई थी. बट तभी भी मतलब सिटीज की सिटी खत्म हो गई, ऑफिस की बिल्डिंग, ऑफिस का एक एक एम्प्लॉय, मेंबर्स, डायरेक्टर्स, एवरीबडी डाइड, बट स्टिल कंपनीज डिड एग्जिस्ट ऑन द पेपर. ऐसे कंपनी नहीं मर सकती है. So even hydrogen bomb cannot kill a company. Another example would be, there were 7 members of a company who all were traveling in the same plane and that plane crashed. So सब साथ के साथ shareholders जो company के थे, members, whom we call owners of the company, died. But in spite of that, company does exist. Company को कुछ भी नहीं हुआ. So that is perpetual succession. Limited liability. It's the best advantage of forming a company. पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है ना, पार्टनर्स के ऊपर का जो लायबिलिटी रहता है, वो पार्टनर्स के ऊपर का लायबिलिटी अनलिमिटेड रहता है. मतलब फिर उसको अपने घर के एसेट्स में से भी सब लॉस वगैरह गया तो उसको भरना पड़ेगा. यहाँ पे शेयर होल्डर्स का लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. जितना अपने शेयर के ऊपर, फेस वैल्यू के ऊपर पे करना पैसा बाकी है, उतना ही आपका लायबिलिटी है. नथिंग ओवर एंड अबव. समझा? Next is, so if the shares are fully paid, so there is no liability on the member. और ये liability भी arise कभी होगी in the event of winding up of the company. अगर पैसों की जरूरत है तभी होगा. Otherwise, as and when the company makes calls, तभी members को पैसा पे करना है, not otherwise. Transferability of the shares. एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपने शेयर्स कंपनी के दे सकता है. पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए तो there are no restrictions. Shares are freely transferable. Even in private limited companies, shares are transferable, but they are subject to certain restrictions. कंपनी अपने आर्टिकल्स में उसकी कंडीशंस लिख सकती है. सेकेंडली, कंपनी का बोर्ड अप्रूवल इज नेसेसरी बिफोर ट्रांसफरिंग द शेयर. जिसको मन में उसको शेयर्स आप नहीं दे सकते विदाउट द बोर्ड अप्रूवल. कॉमन सेल, ये रिक्वायरमेंट ना 2015 के नोटिफिकेशन के बाद मैंडेटरी नहीं रही है, ऑप्शनल रही है. बिफोर दैट इट वाज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट. हर एक कंपनी को अपना कॉमन सेल होना जरूरी था. Common seal is not the rubber stamp of a company. It used to be a seal जिसमें इंक नहीं यूज होता था. Like embossing. कंपनी के जो कुछ लीगल पेपर्स होते थे, फॉर एग्जाम्पल शेयर सर्टिफिकेट, उसके ऊपर कॉमन सील को अफिक्स करना कंपलसरी होता था. कॉमन सील में कंपनी का नाम आता था और उसका रजिस्टर्ड ऑफिस का प्लेस आता था, दैट्स इट, और कुछ नहीं होता था. सो इट वाज लाइक अ स्टेपलर. पेज को वो कॉमन सील के बीच में फंसा के उसको प्रेस करना होता था, तो पूरा कंपनी का नाम एम्बॉस हो जाएगा. इफ यू टेक फोटोकॉपी ऑफ द कॉमन सील, कुछ नहीं आएगा क्योंकि इंक ही नहीं है ना. यू कैन रीड इट बिकॉज एम्बॉसिंग हो चुका है. यू कैन फील इट, यू कैन रीड इट. बट नाउ यू नो डिजिटाइजेशन का माहौल आ गया एंड ऑल दैट. So startups had requested government to please do away with this requirement of common seal and all that. This all is nonsense. Digital signature use can do. Government agreed, so now it's optional. Otherwise, common seal used to be the official signature of the company. Ownership of the property. Company can own property in its own name. किसी डायरेक्टर या शेयरहोल्डर के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदने की जरूरत नहीं है. कंपनी खुद के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है. कैपेसिटी टू sue and to be sued. कंपनी खुद के नाम पे दूसरों को sue कर सकती है.
कंपनी कैन बी सूड इन इट्स ओन नेम, किसी डायरेक्टर को मेंबर्स को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सेपरेट एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट, जो लोग कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं उसके शेयर होल्डर्स मेंबर्स, कंपनी ऑफर वो लोग इनकॉर्पोरेट करने के बाद में खिसक जाते हैं, दे गिव दी मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इन द हैंड्स ऑफ प्रोफेशनल डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सेपरेट ही होता है, दोज आर स्किल्ड इन रनिंग द कंपनी, उनके हाथ में पूरा मैनेजमेंट होता है। You take example of Mukesh Ambani. Now Reliance Group will be having around 200-300 of the group of companies. All of the companies will not be active. Some would be active. So at least 50 to 60 companies would be active. Same as with the Tata Group. All companies may not be active, but at least 60-70 companies would be active. So Ratan Tata or Mukesh Ambani cannot be there on the board of each and every company. They can't be managing directors of all the companies. तो वो लोग क्या करते हैं? Selected companies के board पे रहते हैं, बाकी सब जगह पे professional management होता है। कलेक्टिव ओनरशिप, कंपनी एक या दो जन का नहीं रहता है, जितने भी शेयर होल्डर है इन प्रपोर्शन टू देयर शेयर होल्डिंग दे ऑल आर ओनर्स। बेटर लोन फैसिलिटीज, अगर आप एज ए इंडिविजुअल बैंक के पास लोन के लिए जाते हो ना, धंधा करना है लोन दो, बैंक खड़ा भी दे रहे हैं। एज ए पार्टनरशिप फॉर्म जाते हो, बैंक्स विल गिव टू मच ऑफ टाइम, कॉम्प्लेक्सिटीज एंड ऑल दैट। वंस अ कंपनी इज फॉर्म्ड रिलेटिवली, इट्स नॉट देयर कि कंपनी होगा तो बैंक लोन उठा के दे ही देगी, रिलेटिवली इट्स अ बेटर फॉर्म, क्योंकि ऑर्गेनाइज होता है, रजिस्टर्ड हो जाता है, तो सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह पब्लिक में अवेलेबल होते हैं एमसीए के साइट पे ऑल दैट, तो थोड़ा ट्रस्ट वर्दीनेस बढ़ जाता है, तो लोन वगैरह थोड़ा अवेल करना इजी हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ द कॉर्पोरेशन, इतने सारे एडवांटेजेस हम लोग ने पढ़े, तो थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस भी हो गए। तो पढ़ने के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, so of course there are disadvantages, that is why all the people are not switching from partnership or limited liability to company, but advantages देखने जाओ तो ज्यादा है। कंपनी लोग कभी फॉर्म करता है, इनिशियली यू स्टार्ट बिजनेस एज अ सोल प्रोप्राइटर, देन इफ इट एक्सपांड्स you appoint a partner, you go for partnership firm or a limited liability partnership firm. Further business is expanding, you may go for the प्राइवेट कंपनी होता है, ग्रेजुअली फिर क्या होता है, पब्लिक कंपनी होता है, फिर ग्रेजुअली पब्लिक कंपनी में लिस्टिंग करवा देते हैं, तो आईपीओ वगैरह आता है, तो इट्स द प्रोसेस पूरा। तो कंपनी फॉर्म के डिसएडवांटेजेस क्या है? इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी एक्सपेंसिव, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन का ही खर्चा 20 से 25 हजार होता है, बिकॉज यू हैव टू अपॉइंट डिफरेंट कंसल्टेंट्स, फिर फॉर्म फाइलिंग फीस, ये वो, आरओसी में बहुत सारी फी होती है, एबोए एओए वगैरह रजिस्टर करो तो उसके भी स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फी, वो सब भी देना पड़ता है, यू नीड टू हैव ऑफिस एंड ऑल दैट, तो वो थोड़े बहुत एक्सपेंसेस हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंडिचर, मंथली एक्सपेंसेस भी होते हैं, मंथली कंप्लायंसेस वगैरह सब करने हैं, तो थोड़ा बहुत कैपिटल पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर बढ़ जाता है, तो यू मे हैव टू अपॉइंट कंपनी सेक्रेटरी, फिर ऑडिट वगैरह करवाना कंपलसरी होता है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट करना पड़ेगा एंड ऑल दैट, तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव फॉर्म हो जाता है कंपेयर्ड टू पार्टनरशिप फॉर्म। नेक्स्ट इज टैक्सेशन, कंपनी के इनकम को कॉर्पोरेट टैक्स का लायबिलिटी हमेशा इंडिविजुअल से हाई ही रहता है, एंड कंपनी का फॉर्म ना, यू कैन डू एनीथिंग इन अ ब्लैक, कैश में पैसा आया कैश में पैसा आया, वैसे नहीं चलता है, एवरीथिंग हैज टू बी इन द फॉर्म ऑफ बैंक ट्रांजेक्शन, और अभी एवरीथिंग आजकल इज इन द नेट ऑफ जीएसटी एंड ऑल दैट, तो टैक्स कॉम्प्लेक्शंस भी बढ़ रहे हैं, फॉर्मेलिटीज, बहुत सारी फॉर्मेलिटी, डायरेक्टर को जो मन में आया वैसे डिसीजन लेके डील क्लोज कर दिया, वैसे नहीं होता है, ऑल द टाइम दे हैव टू कीप चेकिंग द एमओए, एओए एंड कंपनीज एक्ट, कहीं कुछ डिविएशन तो नहीं हो रहा है ना, बोर्ड रेजोल्यूशन का एक पर्टिकुलर मैनर होता है, उसी तरीके से होना चाहिए, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल जहाँ पे चाहिए वहां पे वो लेना चाहिए ऑल दैट, सो इट्स नॉट दैट कि आज डिसीजन मन में आया कल इम्प्लीमेंट हो गया, इट मे टेक सर्टेन मंथ्स इन सर्टेन केसेस, ओके, तो ये थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस है, सो इट मे नॉट बी सुटेबल फॉर द स्मॉल बिजनेसेस जिनका टर्नओवर वगैरह बहुत कम है, टर्नओवर से ज्यादा खर्चा इन सब चीजों में आ जाएगा, तो देयर इज नो पॉइंट, बट अदरवाइज कंपनी इज द मोस्ट सुटेबल फॉर्म। इंडिया में अभी नई नई तो 11 से 12 लाख कंपनीज है, so that's the data. Next, this is very important concept, liability of the corporation. कॉर्पोरेशन को हम लोग ने पर्सन बना दिया, लॉ ने उसको रिकग्निशन दे दिया, भाई तुम भी पर्सन हो, तुम्हारे भी राइट्स है, तुम्हारे भी लाइबिलिटीज है, तुम प्रॉपर्टी रख सकते हो, यू कैन सू, यू कैन बी सूड, बहुत सारे उसको चीजें दे दिए, बट एट द एंड ऑफ द डे कॉर्पोरेशन डज नॉट हैव इट्स ओन बॉडी, इट्स ओन माइंड एंड ऑल, उसका सिर्फ वर्चुअल एग्जिस्टेंस ही रहता है। कॉर्पोरेशन कैन नॉट थिंक ऑफ
on its own. It cannot do any work. It has to work through the agents, representatives, etc., like directors, managing directors, employees, and all that. तो अभी कॉर्पोरेशन के ऊपर लायबिलिटी भी तो आना चाहिए ना इन लोगों की वजह से. So 3 types of liabilities are there on corporation. First is tortious act by its employees, directors, etc. अभी इसमें क्या है, कंपनी का कोई भी डायरेक्टर है, एमडी वगैरह है, या तो उसके एम्प्लॉयज कुछ रहेंगे, उन्होंने कुछ मिसचीफ किया जो टॉर्ट्स के अंदर फिक्स होता है. फॉर एग्जांपल नेग्लिजेंट एक्ट. You people have already studied the concept of absolute liability and strict liability. Recently विशाखापट्टनम में गैस लीक हुआ, एब्सोल्यूट लायबिलिटी के अंदर आ जाना चाहिए आइडियली. ऐसे कुछ भी कंपनी के एंड से मिस्टेक हो जाती है, then the concerned employee should be held liable. जैसे कुछ भी नेग्लिजेंट एक्ट होता है कंपनी के एंड से एंड ऑल दैट. कभी कभार कंपनी के एंड से एडवर्टीजमेंट मिसलीडिंग जाती है, कभी कभार प्रोडक्ट डिफेक्टिव जाते हैं. जैसे सैमसंग ने अपने बहुत सारे फोन को रिकॉल किया था, फॉक्सवैगन का बहुत बड़ा पोल्यूशन को लेके इश्यू हो चुका था एंड ऑल दैट. तो कुछ भी होता है टॉर्टियस एक्ट का, कंपनी दैट इज कॉर्पोरेशन वुड बी लायबल. इट कैन नॉट से कि ये तो हमारे एम्प्लॉय ने किया था, मैनेजर ने किया था, डायरेक्टर ने किया था, व्हाट डू वी नो अबाउट इट. इट कैन नॉट रेज द हैंड. इट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कंपनीज ब्रीच करती है कॉन्ट्रैक्ट को, ऑफ कोर्स देयर विल बी सम पर्सन लायबल फॉर दैट, बट इवेंचुअली इट इज द कंपनी जिसके नाम पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो कंपनी वुड बी हेल्ड लायबल. अगर आप लोग को पता रहेगा तो रिलायंस, आरकॉम, अनिल अंबानी का एंड एरिक्सन के बीच में बहुत बड़ा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कुछ इश्यू चल रहा था जो आर्बिट्रेशन में मैटर गया था, एंड पर्सन टू विच आरकॉम हैड टू पे crores of rupees of penalty to Ericsson. Same thing had happened between Tata and Docomo. जो भी एग्रीमेंट जेवी उन लोग के बीच में हुआ था 2009 से लेके 14 तक का ऐसा कुछ था. एंड इफ टाटा कुड नॉट फुलफिल, टाटा हैड टू पे हेवी ह्यूज पेनल्टी टू डोकोमो. So there may be certain employees who would be liable for that, उनके decisions गलत हो गए, but in the eyes of law it is the company which has breached the contract, और कंपनी को जो भी सर उसके implications कोर्ट में arbitration आएंगे वो करने पड़ेंगे. Crime, this is very interesting. टॉर्टियस एक्ट हो सकते हैं, एम्प्लॉय से ब्रीच हो सकता है. कंपनी खुद से तो कभी क्राइम कर ही नहीं सकती है. कंपनी थोड़ी फ्रॉड करेगी, कंपनी थोड़ी स्कैम करेगी. तो ओवर ईयर क्राइम होगा ना, टॉर्टियस एक्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तक क्या होता है, टिपिकली मैटर इज ओवर बाय पेइंग द कॉम्पनसेशन टू द अफेक्टेड पार्टी इफ कंपनी इज इन डिफॉल्ट. But in case of crime, typically it's a punishment, not the penalty, which is important thing. Punishment बोले तो imprisonment. कंपनी को तो आप जेल भेज नहीं सकते हो, तो उस केस में क्या होगा? अगर आप कंपनी को जेल नहीं भेज सकते हो, that's why duty, I mean, employees have to be affect the duty. आप लोगों की वजह से हुआ और आप लोग जेल में जाओगे. So that's why जब 2G स्कैम निकला था ना, तब आरकॉम की और बहुत सारी जो भी कंपनी इस पर फंस चुकी थी 2G स्पेक्ट्रम वाले स्कैम में, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, बहुत बड़े बड़े की एम्प्लॉयज वगैरह सब जेल में गए थे. जब सत्यम का स्कैम हुआ तो उसका जो फाउंडर एंड एमडी था राजू, ही आई थिंक सो ही इज स्टिल अंडर जेल. तो उस केस में एम्प्लॉयज दोज हु आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, उनको फाइंड आउट करके जेल में डालते हैं. अभी नीरव मोदी का इतना बड़ा स्कैम हुआ, हालांकि वो तो भाग गया है, उसके भी बहुत सारे मेजर जो थे उनको जेल में इनिशियली डाला था और उनके अगेंस्ट कोर्ट प्रोसीडिंग चालू हो गई थी. माय फ्रेंड वाज वर्किंग देयर एज अ कंपनी सेक्रेटरी. उसका उसके बॉस का सबका बैंक अकाउंट वगैरह इनिशियल डेज में फ्रीज कर दिया था उन लोग के अगेंस्ट भी. हालांकि उन दे वर सक्सेसफुल दैट उन लोग के अगेंस्ट कुछ केसेस इनिशिएटिव नहीं हुए, बट वैसे होता है. दे वर बेसिकली नॉट इन द कंपनी इन्वॉल्व्ड which company was actually into the scam का मैटर. All the Nirav Modi group companies are not doing wrong. तो होता क्या है ना, ग्रुप ऑफ कंपनीज में से डिफॉल्ट एक या दो कंपनी में ही होता है, बट ऐसा कुछ बहुत बड़े स्केल पे हो जाता है तो सबके ऊपर कुछ ना कुछ आता है. तो इसे एम्प्लॉइज के ऊपर ड्यूटी फिक्स किया जाता है. तो मैम ये जो पेनल्टी कौन भरता है इसमें, मतलब पहले दो इसमें जो पेनल्टी है वो कंपनी. सिर्फ क्राइम वाला मैटर ऐसा है ना कि वो कंपनी जेल में नहीं जा सकती है. तो
जो पहले दो में भी डायरेक्टर की गलतियां रहती है ना, तो वहां पे भी कंपनी को ही नुकसान होता है। बट देयर इट्स कंपनी, यस ऑफ कोर्स। एंड देयर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ ऑफेंसेस जो कंपनी कभी कमिट कर ही नहीं सकती है, पर्सनल टाइप ऑफ ऑफेंसेस लाइक मैरिज रिलेटेड ऑफेंसेस, एडल्ट्री एंड ऑल दैट, तो वो कंपनी के लिए पॉसिबल ही नहीं है करना। थियरीज ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटीज, ये ना प्योरली थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल लाइफ में किधर भी यूज नहीं होता है। सालों पहले, मतलब 200-300 साल पुराने, जब कंपनी का नया नया स्ट्रक्चर एग्जिस्टेंस में आ रहा था, तो बहुत सारे जूरिस्ट ने अलग अलग थियरी निकाल दी कि कंपनी क्या होता है। तो उसके बेसिस पे 4 थियरी आ गई। तो आप कंपनी लॉ में प्रैक्टिस करोगे सालों साल तक, दीज थियरीज आर नॉट गोइंग टू बी यूज्ड एनीवेयर। So first is the fiction theory. There were several jurists who said that the group has existence but no personality, no mind, no will. तो मतलब हम कैसे बोल सकते हैं it is actually an existence, ये तो fiction है। So this company is what fiction, you can never see the company. कंपनी का ऑफिस होता है, ऑफिस नहीं भी होता है, मतलब एक ही ऑफिस पे, रजिस्टर्ड ऑफिस में 50 कंपनी भी हो सकती है। देयर आर पेपर कंपनी और शेल कंपनी जिसको हम लोग बोलते हैं, यू कैन नेवर सी दोस कंपनीज। तो मतलब कंपनी का एग्जिस्टेंस सिर्फ पेपर के ऊपर है, दैट्स व्हाई इट्स अ फिक्शन। कंपनी जैसा कुछ होता ही नहीं है, इट्स फिक्शन, दैट इज फिक्शन थियरी। तो जैसे लोगों ने बोला ये फिक्शन थियरी है, तो उसके अपोनेंट्स आ गए। देयर वर सर्टेन पीपल हु सेड नो नो नो, कंपनी इज अ रियल थिंग, इट डज एक्चुअली एग्जिस्ट। कंपनी का खुद का पर्सनालिटी होता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज ये उन लोग ने कौन सा रियलिस्ट थियरी प्रोपाउंड किया। सी, आई विल नॉट कंप्लीटली डिसएग्री विद बोथ द थियरीज। इन अ वे देखने जाओ तो कंपनी एक फिक्शन ही है, इन अ वे देखने जाओ तो वो एक रियलिस्ट भी थियरी है, क्योंकि हर एक कंपनी का अपना पर्सनालिटी होता है। इफ यू टुमारो यू पीपल स्टार्ट वर्किंग विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, आप लोग को समझेगा कि हर एक कंपनी का ना अपना कल्चर एक अलग होता है, कंपनी की स्टाइल होती है काम करने की, दैट्स द कॉर्पोरेट कल्चर, एंड कंपनी टू कंपनी डिफर्स। So we can say that company has its personality, which is very different from the director's personality, management's personality, shareholders' personality. वो कंपनी का खुद का पर्सनालिटी बन जाता है। अभी अगर आप देखने जाओ तो HDFC बैंक, ICICI बैंक, ऐसे कुछ भी देखने जाओ, कोई भी बैंक है आजकल, सब में 4-5 तो एक ब्रोकिंग फर्म रहता है, एक म्यूचुअल फंड रहता है, एक प्रॉपर बैंक रहता है। HDFC का तो HDFC लिमिटेड, NBFC भी है एंड ऑल दैट। तो वो हर एक विद इन HDFC ग्रुप ऑल्सो ना, हर एक एंटिटी का कल्चर बहुत अलग रहता है। So it's that way. So companies do have this personality. Now certain people came with the bracket theory. वो बोले कंपनी क्या है, it's a bracket. मानो कि ABCD 4 जन ने मिला के एक कंपनी खोला, तो हर टाइम अपने को बुलाना है ना कंपनी को ABCD के नाम से, it's very inconvenient. हर टाइम you cannot take the name of 4 people. So better put this 4 people into one bracket. ब्रैकेट मत को क्लोज कर दो, ब्रैकेट को एक नाम दे दो। फॉर एग्जाम्पल कोई एक कंपनी, इन्फोसिस आई बिलीव कुछ 7-8, आई एम नॉट श्योर ऑफ द नंबर, 4 थे, या मानो कि हाइपोथेटिकली इन्फोसिस को 8 जन ने मिलके बनाया था, इनकॉर्पोरेट 1980 में कुछ किया था। तो ईच टाइम टू टेक नेम ऑफ दोज 8 पीपल वुड बी वेरी इनकन्वीनियंट। बेटर है वो 8 को एक ब्रैकेट में डालो, ब्रैकेट को इन्फोसिस का नाम दे दो। whenever you want to refer to that company, instead of saying the names of all those 8 people, give it the name of Infosys. So it's very easy and convenient. So this is a bracket here. ब्रैकेट थियरी से इनकॉर्पोरेटर्स को सबको ब्रैकेट में डालो। अभी उसके बाद में लोग आए पर्पस थियरी लेके। पर्पस थियरी क्या बोलता है, हर एक कंपनी जो होती है ना, उसका एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि क्यों हमको कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है। तो उसके लिए पर्पस होता है, ऑब्जेक्टिव रहता है, जो मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में भी रहता है। हर एक कंपनी पर्टिकुलर बिजनेस करने के लिए इनकॉर्पोरेट होती है। So basically this theory is propounded कि कंपनी पर्पस के लिए बनती है, इसके लिए पर्पस। तो ये हो गया आपका थियरीज ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। अभी पुराने जमाने के जो जूरिस्ट थे एंड जो लॉ के थिंकर्स एंड प्रोपाउंडर्स वगैरह थे, उन लोग ने ना पर्सन का कुछ कॉन्सेप्ट दिया। As per them, there existed 3 kinds of person. तभी नेचुरल पर्सन, लीगल पर्सन वैसा नहीं था। वो टाइम पे 3 पर्सन कैसे थे, एक था डेड मैन, एक था अनबॉर्न पर्सन और एक था लोअर एनिमल। सो नाउ वी हैव टू स्टडी कि ये तीनों का लीगल स्टेटस आज की डेट में कैसा है। तो जो बंदा मर गया है, यू विल से मैं मर गया तो अभी उसको क्या है, नहीं, बट द पर्सन हु हैज डाइड, इवन दैट पर्सन हैज सर्टेन राइट्स, उसके भी कुछ राइट्स होते हैं।
जैसे राइट ऑफ डिसेंट बरियल, जो आप लोग ने आईपीसी में भी पढ़ा है, आईपीसी ने भी ये राइट रिकॉग्नाइज किया है। बंदा मर गया, उसकी जैसे विश थी उसके अकॉर्डिंगली उसको बरी करना है, उसको बर्न करना है, वॉट एवर वॉज हिज लास्ट विश उसके अकॉर्डिंगली उसको किया जाएगा। बरी लास्ट रिचुअल्स हैव टू बी परफॉर्म। राइट ऑफ विल, ऑफन पर्सन राइट्स अ विल एंड दैट विल बी ओपनड आफ्टर हिज डेथ। बंदा मर गया तो अभी इस विल को क्या करना है वैसा नहीं होता है, बंदे के मरने के बाद में ही उसका विल इम्प्लीमेंट होता है। राइट टू रेपुटेशन, बंदा मर गया करके उसको डिफेम नहीं कर सकते हो। इफ the dead person is being defamed, his legal heirs can take the action against the person who is defaming. तो बेसिक 3 राइट्स डेडमैन के आज के जमाने में भी एप्लीकेबल है। देन कम्स द अनबॉर्न पर्सन। आप लोग ने ऑलरेडी टोपा पढ़ लिया है, आप लोग ने ऑलरेडी हिंदू लॉ पढ़ लिया है, उसमें अनबॉर्न चाइल्ड के राइट्स आप लोग ने भर भर के पढ़े हैं। तो अनबॉर्न चाइल्ड के राइट आज की डेट में भी रिकॉग्नाइज होते हैं। सबसे पहले तो हु इज अनबॉर्न चाइल्ड? अनबॉर्न चाइल्ड इन द मदर्स वूम यहाँ पे आएगा, इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ। मतलब जो जिस बच्चे का कंसेप्शन ही नहीं है, कंसीव ही नहीं हुआ है, वैसे बच्चे की बात नहीं हो रही है। तो चाइल्ड हैज ऑलरेडी बीन कंसीव्ड एंड चाइल्ड इज इन द मदर्स वूम, दैट चाइल्ड इज कंसिडर्ड एज अ पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ। उसको हर एक राइट तो नहीं है एज अ पर्सन, बट सेवरल राइट्स दैट पर्सन हैज गॉट। So he is competent to acquire all the rights of HUF, Hindu Undivided Family Case, जो है आप लोग ने already। Then he has right to challenge the transfer or disposal of such property if the same is made without legal necessity। मानो कि वो बॉर्न हुआ, उसके पहले ही प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हुआ, एलिनेशन हुआ, डिस्पोजल वगैरह हो गया। जो प्रॉपर वे पे नहीं हुआ है, आप लोग ने सीखा है कि आफ्टर दिस बर्थ he can have it reopen और वो सब वापस allocation of the shares वो सब डिमांड कर सकता है। मानो कि उसका शेयर रखा ही नहीं गया था, he can claim his share, तो भैया मुझे मेरा शेयर मिलना चाहिए था। Then comes he is empowered to claim compensation for the death of his father arising from the fatal accident। बच्चा अभी तक पैदा नहीं हुआ है, ओके, और उसके फादर का फैटल एक्सीडेंट में डेथ हो गया है। एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव ही हैज अ राइट टू स्यू द पर्सन, मतलब जो भी बंदा रहेगा जिसकी वजह से हुआ है एक्सीडेंट एंड ऑल दैट, इन द इवेंट ऑफ डेथ एज अ रिजल्ट ऑफ वूम इंजरी इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ, इट इज ट्रीटेड एज कल्पेबल होमिसाइड। मतलब वो अभी तक मदर की वूम में था, मदर को इस तरीके की इंजरीज हुई कि उसके बर्थ होते ही बच्चा मर गया। तो वो जो मर गया ना बर्थ होने के बाद में, व्हाई ही डाइड इमीडिएटली? बिकॉज ही सफर्ड फ्रॉम सेवरल इंजरीज। कौन सी इंजरीज से वो सफर हुआ? जो मदर की वूम को हुई थी, एंड ही इमीडिएटली डाइड आफ्टर द बर्थ। दिस वुड बी कल्पेबल होमिसाइड, जो आप लोग ने 299 सेक्शन में पढ़ा है ना आईपीसी, इट वुड बी दैट। ही इज डिपेंडेंट अंडर द एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट। मतलब कि अगर कोई एम्प्लॉय मर गया, उसके डिपेंडेंट का लिस्ट दिया हुआ है एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट में, किस किस को क्या क्या कितना शेयर मिलेगा एंड ऑल दैट। So even this child is dependent who is not yet born. If pregnant woman has been sentenced to death, such punishment is not executed until delivery of the child. समझा? उसकी चाइल्ड का डिलीवरी हो जाएगा, उसके बाद में ही उसको फांसी की सजा हो सकती है। तो इतने राइट्स है अनबॉर्न पर्सन के। Then comes the last part, that is lower animals. See, as of now, आज की डेट में ना लोअर एनिमल्स मतलब डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं ना, उनको हम लोग ह्यूमन बींग्स और पर्सन करके काउंट नहीं करते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव एनी राइट्स नॉट डू दे हैव एनी ड्यूटी। बट मिडिल एजेस में, स्पेशली इन यूरोप, they were considered as person, and if they committed any nuisance, if they did not fulfill their duty properly, उनके ऊपर ट्रायल होता था, उनको पनिशमेंट भी होती थी। एनिमल को पनिशमेंट है, नॉट टू द ओनर, आई एम टॉकिंग अबाउट पनिशमेंट टू एनिमल। नो लॉन्गर दिस कॉन्सेप्ट इज देयर इन इंडिया। बट इंडिया में कैसा है, उनको दो ये केसेस है ना जिसपे उन लोग को लीगल राइट्स मिले हैं। फर्स्ट इज क्रुएल्टी टू एनिमल, देन बी इट वॉट एवर डोमेस्टिक एनिमल है कि नहीं है। रिसेंटली वी हैव सीन केरला में प्रेग्नेंट वो फीमेल एलिफेंट के साथ क्या हुआ, एंटायर कंट्री में आउटरीच हुआ, एंड विच इज करेक्ट। बीच में ऐसा ना बहुत हो रहा था, चल रहा था, टिकटॉक वगैरह दूसरे वीडियो प्लेटफॉर्म्स पे लोग वीडियो बना के डाले थे। पीपल यूज टू बर्न द डॉग्स, पप्पीज को बंद करते थे, या तो छोटे छोटे पप्पीज को ना ऊपर के हायर फ्लोर से नीचे फेंक देते थे, ऑल दैट।
So all that is punishable offense. In fact, आप लोग ने एक और देखा है Article 377 unnatural offense. Some people have the tendency of having relationship with the animal like goats and dogs and all that. That is also punishable offense. Animals का right है उसमें से prevention का. No other kind of cruelty can be committed on animals. Animals जो slaughter के लिए जाते हैं ना, उसको भी मारने के कुछ तरीके होते हैं. Okay. And another is ये cruelty वाला part हो गया. Second is trust for the particular categories of animals, like public trust, charitable trust. अगर आप लोग को पता रहेगा तो स्पेशली गुजरात में ये कॉन्सेप्ट बहुत होता है, पांजापोल का, गौशाला का एक्सेट्रा. गौशाला इज अ प्लेस जहाँ पे सब गाय को रखा जाता है, फिर उनकी देखभाल की जाती है एंड ऑल दैट. पांजापोल, पांगलापोल इज आल्सो, दीज आर आल्सो द सिमिलर कॉन्सेप्ट कि जहाँ पे नॉट ओनली द काउस बट ऑल द कैटल फील्ड एनिमल्स और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स भी होते हैं, उनकी देखभाल करी जाती है एंड ऑल दैट. तो उनके लिए ना चैरिटेबल या तो पब्लिक ट्रस्ट बनते हैं, ट्रस्टीज अपॉइंट होते हैं, प्रॉपर उनका पूरा फंक्शनिंग होता है. तो ये जो दो बेसिक राइट्स है वो दिए गए हैं अभी एज ऑफ नाउ. अदरवाइज लोअर एनिमल्स वी डोंट कंसिडर एज पर्सन. ठीक है, सो थैंक यू गाइज, वी आर डन. सिलेबस खत्म हो गया.